الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گانوں کے 35 کفریہ اشعار. اب دیکھو پہلا گانا، اس کا شعر سنو. سیب کا موتی ہے، سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے. بتانے کی ضرورت نہیں نا، سمجھ میں آ گیا نا. توہین ہے کہ نہیں؟ اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل ہمارے پاک پروردگار کو، ہمارے پیارے اللہ عز و جل کو بھولنے والا مانا گیا، جو کہ سری کفر ہے. اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے. چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں پارہ 16 آیت نمبر 52، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. اللہ تعالیٰ بہکنے سے بھی پاک ہے، بھولنے سے بھی پاک ہے. بولو میرا رب میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، نہ بہکے نہ بھولے. نہ بہکے نہ بھولے. خالی آیت پڑھو، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، نہ بہکے نہ بھولے. میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. اب اللہ کی یاد میں کھو کے بولو، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. نمبر 2، یہ شاعری سنو. دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیری. پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے. اس میں مجازی محبوب کی پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے. کیا اظہار مطلب مینشن کر رہی ہے، عزم کر رہی ہے، ارادہ کر رہی ہے. کس کا ارادہ کر رہی ہے؟ اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کا، یعنی عبادت کرنے کا. اور اللہ کے سوا ہم کسی کو بھی پوجتے نہیں ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ عز و جل ہے. تو یہ عزم کا اظہار ہے جو کہ کفر ہے. شاعری نمبر 3، ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے. سمجھے؟ اس میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے. نمبر 4، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں. اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ کفر ہے، اور سجدے کی بھی اجازت طلب کیا ہے. تو غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے. 5واں شعر، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے. اس شعر میں مصرع ثانی یعنی دوسری لائن میں 2 صریح کفریات ہے. نمبر 1، اللہ تواب کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے کہ سزا رب جو دے گا منظور ہوگی، تو اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا نا اس نے. غیر خدا کی عبادت کی عزم کا اظہار ہے. یہ 2 کفر ہوا. 6واں شعر، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں، اس مصرے میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے. اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر اور مرتد ہو گیا. ایک گانا بہت مشہور ہوا تھا، اور شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہوگا، ہر مسلمان نے تقریباً گائے اس گانے کو. سمجھے وہ ہے نا، تیری اونچی شان ہے مولا،
तुम लोग शायद वो दौर में पैदा हुए नहीं होंगे, मालूम नहीं, लेकिन वो तो बहुत मशहूर गाना था, बहुत मशहूर। तो इसमें क्या लिखा, उसमें क्या है, नहीं सुने हो गाना तुम लोगों ने? नहीं। इसमें वो एक शायरी आती है, कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, अब तो छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेबें झाड़ मौला। मिसरे सानी में छप्पड़ फाड़ना और जेबें झाड़ना अगरचे मुहावरतन भी बोला जाता है, लेकिन खुदाए रहमान की मुबारक शान में सख्त ममनू है। अगर अल्लाह अज़्ज़ल को अज्साम की तरह जिस्म वाला माना और उससे जेब वाला लिबास पहनने वाला एतकाद किया तो सरी कुफ्र है। रब्बे कायनात जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। आठवां शेर, बेचैनियां, पूरी दुनिया की बेचैनियां समेट कर सारे जहां की, बेचैनियां समेट कर सारे जहां की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। कुछ ना बन सका, अल्लाह ताला से नहीं बन पाया माता, तो मेरा दिल बना दिया। इतना तो ख्याल है। अपना को शायर बोलते, शायरी एक फन है। अब फन का ऐसा नाजायज फायदा उठा, नाजायज फायदा का नुकसान ही नुकसान हो रहा है, समझे, ईमान हाथ से जा रहा है। इस शेर की मिसरे सानी के अल्फाज, जब कुछ ना बन सका, इनमें अल्लाह ताला को आजिज और बेबस माना जा रहा है कि नहीं बना पाया अल्लाह ताला, माद अल्लाह सुम्मा माद करार दिया गया, बेबस करार दिया गया, जो कि सरी कुफ्र है। अब ये भी अपने दौर का मशहूर खान गाना, अपने दौर का मशहूर गाना, ये आगे आएगा, वो गाना आगे आएगा। ये दूसरा है, 9वां शेर है ये, दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, सदमे सहे जो मैंने तू भी उठा के देख। ये शेर तो कई कुफरियात का मजमुआ है। इसमें अल्लाह ताला पे वाज़ेह एतराज और उसकी तौहीन है। अब जो मैं बताता कि ये अपने दौर का मशहूर गाना, नंबर 10, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। इस शेर में अल्लाह ताला पर एतराज का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र है। जो गाना गाया, ये सब गाने गाए, ये सब अशार पढ़े कहे, सुने शौक से, दूसरों को सुनाए शौक से, जहाँ तक ये बात पहुंची शौक से, सब काफिर 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 काफिर। 11वां शेर, ऐ खुदा इन हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई। एतराज और ये सब कपल पल के मामले में अल्लाह ताला का नाम लेते। तेरे पास मिट्टी कम थी या तूने रिश्वत खाई। अल्लाह अकबर। मज़कूरा शेर में 3 तो सरी कुफ्र है। इसमें रब्बे कायनात की ज़ात सितुता सिफात पर पतली कमर बनाने पर एतराज। नंबर 2, इस पर आजिज और बेबस होने का इल्ज़ाम। और नंबर 3, रिश्वत खाने का इत्तेहाम यानी तोहमत है। अल्लाह को तो रिश्वत देगा, कहाँ फिट कर रहे, क्या क्या। नंबर 12, इस हूर का क्या करेंगे जो 1000 साल पुरानी है। जन्नत की हूर जो है, उस हूर का क्या करेंगे जो हजारों साल पुरानी है। माज़अल्लाह, इसमें जन्नती हूर की खुली तौहीन है। जन्नत या जन्नत की किसी भी नेमत की तौहीन सरी कुफ्र है। ये 12वां शेर था। 13वां, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। ये गाना सुने ना, मशहूर गाना है बेटा ये। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। पानी पॉज। 13वां शेर था ना, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। माज़अल्लाह, शेर के दूसरे मिसरे में कहा गया है खुदा भी ना जाने। ये बात सरी कुफ्र, अल्लाह ताला तो सब जानता है। अब ये शेर के अंदर तो तकरीबन 6 कुफ्र आ रहे, शायद वो तो 5-6 आ रहे। खुदा भी, ये भी अपने दौर का मशहूर गाना है, बहुत से लोग उसको गाए।
खुदा भी यानी अल्लाह से बढ़कर कोई और भी है, तो खुदा भी आसमां से जब ज़मीन में देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन में देखता होगा, ज़मीन पर मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। ये नालायक आशिक का जो महबूब है उसको कौन बनाया, अल्लाह ताला सोचता होगा। अब यहाँ पे सुनो, खुदा भी यानी अल्लाह से बढ़कर कोई है, आसमां से, अल्लाह ताला आसमान पर मकान साबित किया जा रहा है। जब सभी पे देखता होगा, यानी हमेशा नहीं देख रहा, जब देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया, मतलब अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, कोई और खालिक है। किसने बनाया वो अल्लाह को पता ही नहीं कौन बनाया, सोचता होगा। अल्लाह ताला सोचने से पाक है। कितने सारे कुफरियात का मजमुआ है, और काफिर होने के लिए तो एक ही कुफ्र काफी है। इस शेर में माज़अल्लाह कई कुफरियात है। जब देखता होगा, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हर वक्त नहीं देखता है। दूसरा, इस बेहया के महबूब को अल्लाह ने नहीं बनाया, माज़अल्लाह कोई और उसका खालिक है। तीसरा, किसने बनाया ये भी अल्लाह को नहीं मालूम। चौथा, सोचता होगा। पांचवा, खुदा ताला आसमान से देखता होगा। हालांकि अल्लाह ताला अज़ल के लिए मकान और समत पाक, अल्लाह ताला मकान और समत से पाक है। बहरहाल ये शेर कुफरियात का मलगूबा है। इसमें रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जिहालत और मोहताजी की निस्बत है। किसी और को खालिक मानना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खालिकियत का इनकार है। वो हर वक्त, हर लम्हा, हर शय को मुलाजा फरमा रहा है। शेर में इन औसाफ का इनकार है। ये सब कतअन इजमाअन कुफरियात है। कायल यानी जिसने बात कही है वो काफिर और मुर्तद हो गया। यूं ही खुदाए रहमान के लिए मकान साबित किया है, ये भी कुफ्र है। समझे नहीं बात। नंबर 15, रब ने मुझ पर सितम किया है, जुल्म किया है। एतराज भी है, अल्लाह को जालिम भी बोला। जमाने का गम मुझे दिया है। माज़अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई अल्लाह ताला को जालिम ठहराया गया और उस पर एतराज़ भी किया गया। तो जब भी कोई गाना नया रिलीज होगा, और मान लो 2 गाना रिलीज हुआ है, इसमें से एक गाने में कुफ्र और एक में नहीं है, तो तुम कौन सा गाना गाओगे? सुने, इसने बोला जिसमें कुफ्र नहीं रहेगा उसको गाना है। नहीं भाई मैं बोलूं, गाना हराम ही है। हराम ही है ना। गाना रिलीज हुआ, गाना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, चाहे कुफ्र हो चाहे नहीं हो। अच्छा जवाब दिया तूने। उसने बोला जिसमें, ऐसा बोले चुप हो गया। बोलने ही तो यही जा रहा था, इसमें कुफ्र नहीं है, वही पढ़ा जाएगा, गाया जाएगा, है ना। गाना ही हराम है, सुनना हराम है। 16वां शेर, तुझको दी सूरत परी सी, तुझको दी सूरत परी सी, दिल नहीं तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। इस शेर में 2 सरी कुफरियात है। अल्लाह ताला को माज़अल्लाह जालिम कहा गया है और अल्लाह ताला पर एतराज किया गया है। 17वां शेर, ओ मेरे रब्बा, रब्बा रे रब्बा, ये क्या गजब किया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। इस कुफरियात से भरपूर शेर में अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर एतराज और उसकी तौहीन है। 18वां शेर, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। इस शेर के मिसरे सानी में 2 सरी कुफ्र है। मखलूक को खुदा कहना, फिर उसकी बंदगी यानी इबादत करना। 19वां शेर, मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के आप रहते हैं। इस शेर के मिसरे सानी में गैर खुदा को खुदा कहा गया, ये सरी कुफ्र है। समझे। 20वां
शेर। 20वां शेर, किसी पत्थर की मूरत से, मूरत स्टैच्यू मूर्ति, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, परस्तिश इबादत, परस्तिश की तमन्ना है और इबादत का इरादा है। इस शेर में पत्थर के बुत की पूजा की तमन्ना और नियत का इजहार है, जो कि खुला कुफ्र है, क्योंकि इरादा कुफ्र भी कतई कुफ्र है। इस शेर में अपने लिए कुफ्र पर रजामंदी भी है, ये भी सही कुफ्र है। 21वां शेर, मुझे बता ओ जहां के मालिक, मुझे बता ओ जहां के मालिक, ये क्या नज़ारे दिखा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी कि आज मुझको रुला रहा है। इस शेर में अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर एतराज़ का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र का हुक्म है। अगर शायर या जो पढ़े उसकी मुराद अल्लाह पर एतराज़ हो तो सरी कुफ्र है और वो काफिर व मुर्तद है। 22वां शेर, हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, उनकी क्या तारीफ करूं मैं, फुर्सत से है रब ने बनाया। फुर्सत से, लफ्ज़ फुर्सत अल्लाह के लिए शायर निशान नहीं, अल्लाह ताला वक्त का मोहताज नहीं है। इस शेर में फुर्सत से है रब ने बनाया कि अल्फाज कुफ्रिया है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए फुर्सत का लफ्ज़ बोलना कुफ्र है। 23वां शेर, ऐ खुदा बेहतर है ये कि तू छुपा पर्दे में है, ऐ खुदा बेहतर ये कि तू छुपा पर्दे में है, बेच डालेंगे तुझे ये लोग इसी चक्कर में है। इस शेर में रब्बुल आलमीन को मजबूर और बेबस और धोखा खा जाने वाला कहा गया है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुली तौहीन है, अल्लाह रब्बुल मुबीन की तौहीन कुफ्र है। 24वां शेर, बताना इसके अंदर कुफ्र किधर है। अब ये जान ले ले या रब, या ईमान ले ले या रब, दो जहां ले ले या रब, या खुदा फना फना ये दिल हुआ फना। इस शेर के इस हिस्सा ईमान ले ले या रब में ईमान चले जाने यानी काफिर हो जाने पर राजी होना पाया जा रहा है, जो कि कुफ्र है। फतावा तातार खानिया में है, जो अपने कुफ्र पर राजी हुआ तहकीक यानी बेशक उसने कुफ्र किया। जब से तेरे नैना, 25वां शेर है ये, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। इस शेर के इस हिस्से में कि रब भी दीवाना लागे रे में शायर बेबसायर के दावे के मुताबिक उसको खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ वजल माज़अल्लाह दीवाना लग रहे, यकीनन उस अज़्ज़ल की शान आली में खुली गाली और खुला खुला कुफ्र इर्तिदाद है। फतावा तातार खानिया में कि जो अल्लाह को ऐसे वस्फ़ यानी पहचान या खासियत से मौसूफ करे जो उसकी शान के लायक नहीं, या अल्लाह ताला के नामों में से किसी नाम का या उसके अहकाम में से किसी हुक्म का मजाक उड़ाए, उसके वादे या वाइद का इनकार करे, तो ऐसे आदमी की तकफीर की जाएगी, यानी उसको काफिर करार दिया जाएगा। 26वां शेर, सल्लु अलल हबीब, एक्सचेंज कर दिया, थक गया। जो भरता नहीं वो जख्म दिया है, मुझको नहीं प्यार को बदनाम तूने किया है, जिससे मैंने पूछा मसीहा बनाकर, ना था ये पता पत्थरों का बना है, ना था ये पता कि पत्थरों का बना है। इस शेर में अपने मजाजी महबूब को पूछने यानी उसकी इबादत करने का इकरार, और शायर इस कुफ्र का इकरार कर रहा है, और कुफ्र का इकरार भी कुफ्र है, अगर मजाकन हो तब भी यही हुक्म है। सदरुशरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बतौर तमस्खुर और ठट्ठा यानी मजाक मस्खरी में कुफ्र करेगा वो भी मुर्तद है, अगरचे कहता है कि मैं ऐसा एतकाद यानी अकीदा नहीं रखता। 27वां शेर,
रखूंगा तुम्हें धड़कनों में बसा के, रखूंगा मैं तुम्हें धड़कनों में बसा के, तुम्हें चाहूंगा खुदा मैं बना के। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल वहदहू ला शरीक बयान करदा शेर में बंदे को चाहतों का खुदा माना गया है, जो कि खुला कुफ्र और शिर्क है। 28वां शेर, तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। इस शेर में अल्लाह ताला पर एतराज़ करने के इरादे का इजहार है, और अल्लाह ताला पर एतराज़ करना कुफ्र है। अल्लाह सौजल हंसने और रोने से पाक है। अल्लाह ताला हंसने और रोने से पाक है। अभी देखो एक शायर ने सारे नज़म लिखे, इसमें 29, 30, 31, 32 4 रुबाई है। एक शेर 2 लाइन का होता है, रुबाई 4 लाइन की होती है, तो 4 रुबाई है। ठीक है, लोग कैसे कैसे फालतू बात बोल रहे लोग, और सच यकीन रोना आ जाएगा अल्लाह ताला के ताल्लुक से। एतराज़ कर रहे हैं, अपना को बहुत दुखियारा समझ रहे हैं, जहाँ का दुखियारा। और शेर लिखना आता है तो ऐसे ऐसे वजन बैठाने आता है तो कुछ भी लिखने का मतलब। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले, मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहब्बत पे ये जुल्म ढाने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुझे भी किसी से अगर प्यार होता, अल्लाह अकबर, हमारी तरह तू भी किस्मत को रोता। अल्लाह अकबर, ये अशकों के मेले लगाने से पहले अल्लाह अकबर, जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। अल्लाह अकबर। मेरे हाल पर ये जो हंसते हैं तारे, ये तारे हैं तेरी हंसी के नज़ारे। हंसी मेरे गम की उड़ाने से पहले, हंसी मेरे गम की उड़ाने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। जमाने के मालिक ये तुझसे गिला है, खुशी हमने मांगी थी रोना मिला है। गिला मेरे लब पे भी आने से पहले जमाने के मालिक तो रोया तो होगा। ये सब बेवकूफ़ इंसान है। मस्कूरा अशआर यानी चारों शेर जो बताया मैं, तौहीन से भरपूर है। इन अशआर में कम से कम 5 तो खुले कुफ्रियात नजर आ रहे हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के लिए रोना मुमकिन माना गया है। नंबर 2, अल्लाह ताला को जालिम कहा गया है। नंबर 3, अल्लाह ताला को महकूम माना गया है। हाकिम मतलब हुक्म देने वाला, और जो हुक्म मानता है उसको महकूम बोलते हैं। तो अल्लाह ताला का पर कोई हाकिम नहीं है, अल्लाह ताला खुद हाकिम है, और हाकिम हकीकी है, अल्लाह ताला महकूम नहीं है। नंबर 4, इसको किसी के रंज और गम और बेबसी पर हंसी उड़ाने वाला करार दिया गया है। अल्लाह ताला पर एतराज किया गया है। इसना शार है। हाँ। नंबर 33 यानी 33वां शेर, मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मुझे यार चाहिए। इस शेर में 2 कुफ्रियात तो लिख रहे, गैर खुदा की पूजा यानी इबादत का इकरार, अल्लाह की तरह किसी और का होना मुमकिन माना गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा 25वां, सूरह शुरा आयत नंबर 11, पारा 25 सूरह शुरा आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इबाद इरशाद फरमाता है, इस जैसा कोई नहीं और वही सुनता देखता है। बेशक अल्लाह की तरह कोई है नहीं। तो क्या अल्लाह ताला फरमा रहे इधर, इस जैसा कोई नहीं और वही सुनता देखता है। सदुल शरिया बदु तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कभी बाहर शेद में लिखते हैं कि अल्लाह एक है, कोई उसका शरीक नहीं, ना ज़ात में, ना सिफात में, ना अफ़आल में, ना एकाम में, ना अस्मा नामों में। 34वां शेर, हुस्न खुदा का, हुस्न खुदा है। 34वां शेर है ये, हुस्न खुदा है, हुस्न नबी है, हुस्न है हर गुलजार में, हुस्न हो तो कुछ भी नहीं है इस सारे संसार में। शायर बेबाक ने हुस्न को खुदा का है,
اور یہ کفر ہے۔ نمبر 35، قسمت بنانے والے ذرا میرے سامنے آ، اللہ اکبر، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ اللہ اکبر، مذکورہ شعر میں کئی کفریات ہے۔ عذاب نار کے حقدار شاعر نا ہنجار کا اللہ غفار کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا، ذرا سامنے آ، اللہ کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی سخت توہین ہے، اللہ اکبر، اور رب مبین کی توہین کفر ہے۔ میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری کیا ہے کہہ کر اللہ پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا کفریہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے پکارا گیا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ بیٹے اسلام بھائیو، ایمان برباد ہو گیا۔ یاد رکھیں، قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا سنا وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر گیا، کافر و مرتد ہو گیا، اس کے نیک اعمال اکارت ہو گئے، پچھلی ساری نمازیں اور روزے حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی، شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو کر مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو۔ اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کا شعر جس کے ساتھ گایا سنا پڑھا ہے یا نہیں، تو مجھے تو بس یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ بے شک، اسی میں دونوں جہاں کی صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بارش کی دعا پڑھ لو۔ یہ انشاءاللہ ایک ایک قطرے بدلے میں ایک ایک نکی ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہم اللہم صلی وسلم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا سیدنا مولانا محمد محمد بعدد قطرات الامطار، قطرات الامطار، اللہم سقیا نافعہ، اللہم سقنا نافعہ، والی بارش ہے نا، اللہم صیبا نافعہ، اللہم صیبا نافعہ، بادل کے شر سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، من شر ما فیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ۔